Unacademy. Let's crack it. Hello everyone, my name is Kalpesh Sharma and I have secured All India rank 73rd in Civil Services Examination 2020, and as you can see I am going to talk about the scoring 300 plus in anthropology in this examination. So my optional has been anthropology and this was my third attempt, and all three attempts I have given with anthropology as optional. So and this year I have got a score of 306. So because of that only I could get into the list, and also a good rank I have achieved. So anthropology has been my companion in this UPSC journey since beginning. So I will talk about the anthropology, how to prepare it, and what nuances you should know while preparing with the anthropology for UPSC. So let us begin with this. So this is brief about me. Like I have done mechanical engineering in NIT from NIT Jaipur, and then recently I have joined Ministry of Defence in January 21, and optional has been anthropology, that and also this is my third attempt. So in the third attempt, so I will also tell you about my scores in 3 attempts, and this is little about me. So mechanical engineering, now one question arises like from mechanical engineering to anthropology. So anthropology, so it was a strategic decision which I took in my first attempt. So or I would say I chose anthropology because at that point of time the anthropology seemed to be a short syllabus to me, and there was also rumors or maybe myths in the market like anthropology is scoring high, and its syllabus is also short, so आपको एंथ्रोपोलॉजी लेना चाहिए. तो मैंने कहा ठीक है चलो ऐसे ट्राई करते हैं, कोई तो एक लेना ही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेने का तो मूड में था नहीं कभी, तो चलो ठीक है एंथ्रोपोलॉजी से ट्राई करते हैं, नया सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग होगा तो करते हैं, लेट अस सी. तो ये फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी से शुरू किया. तो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा 2018 में, एंड आई गॉट ए स्कोर ऑफ 267. 2019 में आई गॉट, means in all 3 attempts I was able to clear the prelim fortunately. So I was fortunate enough to write mains 3 times, then 257 in 2019, and 2020 I have got 306. Okay, so in the first attempt I had done basic readings, and at that time the anthropology was moderated towards the higher side, and so I got 267 marks. But in the second attempt in 2019 year, the highest mark of the anthropology were 302. So obviously it was moderated on the lower side by the UPSC, and it happens every year. So inter subject moderation and intra subject moderation is the norm in the UPSC. That UPSC has also given this information in an RTI reply. Okay, and now in 2020 I have got the score of 306, and this time the anthropology has done good, and the highest score is 320, and I have got 306. So this is my journey in anthropology. So this is my code which you can use on the Unacademy platform, to watch my all the lectures free. So I am conducting few classes, so you can watch them for free. So now these are other educators on the Unacademy platform like Munna Patel sir, Pratik Nayak sir, Siddharth sir, and Sudarshan sir. So they all are very renowned faculties and experienced faculties. So you can subscribe to their courses if you feel need to subscribe to them. Okay, so let us begin with the anthropology. So first of all I will give the overview of this session, like beginning with anthropology. Then I will focus on the first chapter, which is the core of the anthropology, means it is the introduction to anthropology, what is anthropology all about, and then few things which you should keep in mind always while reading the anthropology. Then social anthropology, approaching social, physical anthropology, approaching physical anthropology, then
Indian anthropology, approaching Indian anthropology, tribal anthropology, approaching, and archaeology, and how to approach the archaeology. So these are few pointers on which we will discuss things. Okay, so let us begin with this with the anthropology as a subject. So first of all, you should go through the syllabus thoroughly, because you will find while going through the syllabus that it has 4 major divisions of the syllabus and 1 small division. So 4 major divisions are social anthropology, physical anthropology, Indian anthropology, and then tribal anthropology, and plus 1 small, that is archaeology. So these are 4 divisions of the syllabus, and you must identify the fortunately the syllabus has been given in a very good manner, like they have given the social anthropology content under one heading and at one place, and then physical anthropology at 2 places. So in this way the syllabus is very well defined and structured. So how to begin with anthropology? So first of all, you should understand the first chapter of the paper 1 very well, because this chapter is the crux of the anthropology. Like, what is anthropology, when it was evolved, how it came into existence, what is its history, and what are the branches of the anthropology, how anthropology is related with the other branches, other subjects. So in this manner, this first chapter is very important to understand. I will tell you how. And how to begin. Then any coaching notes you can refer to for beginning with the anthropology, and that coaching notes should be covering the whole syllabus of the anthropology in accordance with the syllabus, topics. Like, if I will tell you, like if in the syllabus it is given 1.1 is meaning and scope of anthropology. So you should be, the coaching notes should cover this thing, meaning and scope of anthropology. And if 1.2 is about relation of anthropology with other subjects, so in that note also this should be there, because it is the beginning of yours with the anthropology. So you should not face any problem, like under 1.1, that is meaning and scope of anthropology, what is the content which you should prepare. So for the first reading, such a notes you should buy from the market. Okay, and I am cautioning you here, like it will take 1 to 1.5 months, and it may seem boring to you, because in the first reading what happens, this subject is completely new to you. So and there are many factual things are mentioned there, and new concepts have been introduced to you. So you might face certain issues in the beginning, and it might seem boring to you. So don't worry about that, just go through that content and finish it for once. Then what you can do, you can read this Anthropology Simplified book by Dr. Vivek Basme. Dr. Vivek Basme is an IAS officer. He had optional as anthropology as optional. So he had given this book in a question answer form manner. Question answer form. So he would write the topic, then he would give question and answers. So 4-5 questions on each topic. So you would get an idea, like under 1.1 what kind of questions are being asked, under 1.2 what kind of questions are being asked. So these things you will able to know gradually by reading these 2 sources. Then you have to refer to previous year question papers, so that you get certain confidence that whatever I am reading from these sources is enough to answer the previous year question papers. So therefore it will be enough for answering the upcoming year's question papers also. So that is the beginning of the anthropology. Means these 3 things can be said to be the beginning of anthropology. Means you would have certain idea about what is anthropology and what is how to approach the anthropology in respect of UPSC preparation. So now what is the first chapter? Okay, so I told you about to understand the first chapter very well. So it is because it is about the meaning, scope and development of anthropology. Means what is anthropology, what anthropology embraces or covers, and how it has developed since its beginning, and relationships with other
disciplines like social sciences, behavioral sciences, life sciences, medical sciences, earth sciences and humanities. So all these means how anthropology is different from these sources, and how these sciences or social sciences, and how anthropology is similar to these subjects. So you should be able to understand that properly. And also you have to understand the what are the major branches of the anthropology and their scope and relevance. Relevance means what is the importance of those branches in present time, and scope means what we study under these subjects, under these branches. So there are 4 branches: social, cultural, biological, archaeological and linguistic. So these are 4 major branches, and you have to read them in detail in your classes or in your book. So this is the first chapter. So after reading this book, you will have certain idea like what is the anthropology all about, and what are the questions, or what or all things entails anthropology. Okay. So this is the first chapter. You have to understand this very well. And again I told you about the basic source from any coaching institute, so that you are able to cover all these topics, subheads like social sciences, behavioral sciences, socio-cultural anthropology, everything they should have mentioned in short. So now few things you should keep in mind while preparing for anthropology. Like whenever reading a book, give numbering to various elements in the paragraphs. So what I mean to say here is, like, if this is the book, this is the page of the book, and there are 4-5 lines given there, okay, till here, and then next paragraph is there. So there may have mentioned, because the most of the books in anthropology are not aimed at the UPSC preparation. So what you have to do is, you have to number them, like I would give an example, like they would write like culture entails art forms, clothing, dressing, food items, buildings and traditions. So all these things they will mention in a paragraph form. So you should be able to identify these things by mentioning the number. You just mention here: 1 art forms, 2 clothing, 3 food, 4 traditions, 5 festivals. So in this manner you should be able to identify these elements in a paragraph. Okay. So this is how you should read a book, all the books in the anthropology for that matter. And notes means you have to make notes also. So making notes in accordance with the syllabus. Making notes in accordance with the syllabus means you have to prepare notes in accordance with the syllabus, means meaning you just write like 1.1, like I am preparing notes for this topic, okay, 1.1. So how will I prepare notes? 1.1, or I will give 1.1.1, then meaning of anthro. So whatever I will write here, then 1.1.2, then scope, okay, then again content 1.1.3, then development of anthropology, then some content here. So in this manner I will prepare the notes. So this is the syllabus wise preparation of notes, okay. And then keep flexibility in your notes, so that any more information you can add later on from other sources whenever you read them. So flexibility is required. Flexibility means either you can choose to make notes in A4 sheets, so that you can add on new A4 sheets whenever it is required, okay. So in this manner you have to make notes, or if you are making notes in copy, then you can leave certain margins here. You just make notes here and leave margins here. Whenever you get new information, you add on here, okay. So in this manner you can do it. Then while making notes, keep it in mind that this is for the purpose of answering questions in the exam. So always make notes in the point wise form, like 1, 2, 3, 4, 5. Do not write in a paragraph form, because in paragraph form it becomes very difficult to remember. So always write in points form, because you have to reflect the same things in your answer copy of the UPSC exam. So this is one of the things you have to keep in mind, like always write in points form. Then also add relevant diagrams, maps, flowcharts in notes itself, okay. So I mean to say here is,
like I am talking about the archaeological anthropology. Okay, there is 1.3 point D. This point is archaeological anthropology. Let's suppose it. So there are few content is mentioned. Then whenever you draw certain diagram, so draw it here only. Like I will draw a tool diagram. Tool diagram that were used at that point of time. Okay, so these were the tools used at that point of time. So I will mention them here only. I will not create a separate booklet for the diagrams, because whenever I will revise this syllabus, automatically these diagrams will be included in this syllabus in my mental framework. Okay, so that is these are 4-5 points I wanted to make to you. So now let us start with the syllabus. So first of all, we start with we have already done the first chapter, that was the introduction to anthropology. Now social anthropology, that is the second division or the first major division of the anthropology. So in this we study culture, society, marriage, family, kinship, economic organization, political organization and social control, religion, anthropological theories. So these are, and after it we also study these culture, language and communication research methods in anthropology. So these are few topics which we study under the social anthropology division of the whole syllabus. So I would urge you, or I would request you to go through the syllabus. Like under family, what we read: definition, universality, laws of marriage, types of marriage. So all these things we should know, like this is there in the syllabus. So how to approach the social anthropology, or what are the sources for the social anthropology you can refer to? First of all, read this book, History of the Anthropological Thought by Gaya Pandey and Upadhyay. Okay, so in this book you will be able to understand the theories, the point 6. Okay, I told you about this one. Anthropological theories: classical evolutionism, then historical particularism, functionalism, structuralism. So till here you will be able to understand through that book. Okay, till here, the 6th chapter, and all these topics like culture, society, marriage, family, kinship, economic organization, political organization, religion, they are the part of these theories. So whenever any of these are the names of the scholars like Boyas and British Malinowski, Levi-Strauss and Edmund Leach, Benedict Mead. So all these scholars have mentioned something or the other on the topics like society, culture, marriage, family. So we have to first read these theories and then we will able to understand the concepts of marriage, family and all others. Okay, so first you have to read this Gaya Pandey book. Then printed notes for the theories of other coaching institutes. So wherever you can get these theories in short, you can get them from the market and read them, because you should have a consolidated place where you have all the theories at a place, so that you can revise them and you can read them thoroughly again and again. Then after doing this, you can read this book, Introduction to Social Anthropology by N.K. Ved. So in this book, all those concepts like marriage, family, kinship, they have been explained in a lucid manner, and this you should do only after this Gaya Pandey book, this History of Anthropological Thought. And another book is Ember and Ember. This is a foreign author book and it has good examples from the all over the world. So you cannot miss to read this book. Okay, so and there are selective concepts you have to take from this book and few examples of the world tribal societies, so that you can incorporate them in your answers while writing the mains exam. So these are the sources you should refer to for social anthropology. And how to approach the social anthropology, like I told you about this. So Gaya Pandey, read the Gaya Pandey from beginning and read thinkers and concepts given in the syllabus. Then focus on understanding of the theories.
understanding of theories which I told you about classical evolutionism, neo-evolutionism, and structuralism, Malinowski's functionalism. So you should understand those theories. Then introduction into social anthropology by Enquist, and after reading these two books you can start to make notes in loose A4 sheets or in PC or whatever you are comfortable with, and notes should be syllabus wise, like I told you about 1.1, 1.2, 1.3 है ना. So notes should be syllabus wise, and every subheading should be covered. Means there should not be any subheading in the syllabus where you do not have sufficient material to write 150 words answer or 250 words answer. So that is the requirement, that is the basic minimum requirement है ना. So वो आपको करना पड़ेगा. तो गया पांडे कर लीजिए, उसके बाद ये एन.के. वैद की बुक कर लीजिए और फिर नोट्स बना लीजिए. तो ये आपका रहेगा इसमें, ठीक है. इसमें जो भी और एडिशन करना है वो मैं बाद में बताऊंगा कि क्या क्या आप और ऐड कर सकते हैं. तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको ये दोनों बुक्स ऑब्वियसली ओपन रखनी पड़ेगी, और फिर एम्बर एंड एम्बर से कुछ कंसेप्ट्स उठा के उसमें डालेंगे आप अपने जो नोट्स है, जो मेन नोट्स बनाए हैं उसमें. और ऐसे ही न्यूज़पेपर से भी कुछ एग्जाम्पल आप उठा सकते हैं. जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो, और जब आपको एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस पूरा ध्यान में रहेगा तो आपको लगेगा यार ये चीज़ तो एंथ्रो से बता रहे हैं, तो एंथ्रो के नोट्स में डायरेक्टली अपडेट कर दीजिए वो. तो ये जो प्रोसेस है ये आपके नोट्स को इतना वो बनाएगी, इतना यूनिक बना देगी कि आपको नंबर देने से कोई रोक ही नहीं पाएगा, ठीक है. तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी. और उसमें कुछ करना चाहते हैं आप तो इसमें एक इग्नू का मटेरियल भी आता है, तो इसमें आप इग्नू का मटेरियल भी देख सकते हैं, जिससे कि कुछ नया कंटेंट मिल जाएगा आपको. इग्नू का एंथ्रोपोलॉजी का मटेरियल वो आपको वेबसाइट से मिल जाता है, ठीक है. इग्नू एंथ्रोपोलॉजी, तो ये भी कर सकते हैं. इसके अलावा उसमें जो नया कंटेंट मिलता है वो आप इसी की तरफ मेन नोट्स में अपडेट कर दीजिए, ठीक है. नाउ कमिंग टू द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी. तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ये कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में दिया हुआ है, फिर मेंडलियन जेनेटिक्स का कुछ दिया हुआ है कि मैन फैमिली स्टडी, सिंगल फैक्टर, मल्टी फैक्टर, ये सब कैसे चलते हैं. जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म और सिलेक्शन की बात की है, मेंडलियन पॉपुलेशन, हार्डी-विनबर्ग लॉ. तो ये सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी बुक्स में, तो इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. और क्रोमोजोमल एबरेशंस लाइक ये जो होते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सुपर फीमेल सिंड्रोम, ये सब आप कर लेंगे वहाँ से, है ना. तो ये बहुत ही ईजी है, ये बस आपको एक बार समझ में आने चाहिए. रेस एंड रेसिज्म भी दे रखा है इसमें. फिर उसमें एज, सेक्स और एक मिनट, हाँ, एज, सेक्स एंड पॉपुलेशन वेरिएशन एज जेनेटिक मार्कर, ये भी दे रखा है. कंसेप्ट एंड इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें सारी स्टेजेस, प्री नेटल, नेटल, इन्फेंट, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, मैच्योरिटी और सेनिसेंस, ये सारे हमें प्रिपेयर करने होते हैं कि इन स्टेजेस पर क्या क्या होता है, क्या क्या ग्रोथ फैक्टर्स हैं, कैसे कैसे ये काम करता है, ठीक है. फिर रेलेवेंस ऑफ मेनार्क, मेनोपॉज, ये बायो इवेंट्स टू फर्टिलिटी, इसमें फर्टिलिटी पैटर्न्स वगैरह को देखते हैं. फिर डेमोग्राफिक थ्योरीज, ये वही सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी वाला पार्ट आ गया, वो माल्थस का थ्योरी थी वगैरह. और इसमें बायोलॉजिकल थ्योरीज भी आ जाती हैं, सोशल भी और कल्चरल भी. फिर आता है कि फिकंडिटी, फर्टिलिटी, नेटलिटी, मोर्टालिटी में इसमें क्या क्या फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं. एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन द मतलब जनरल लाइफ, तो उसमें स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है, न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी में क्या है, डिजाइनिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स में क्या है, फोरेंसिक्स में क्या है. तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी है, आपको एक बार समझ में आ जाएंगी तो फिर ये डिफिकल्ट नहीं लगेंगी आपको. इसमें एक और पोर्शन दे रखा है इसमें इसी में कि ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इमरजेंस ऑफ मैन, कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ है ओवर द टाइम. तो ये भी एक इसका पार्ट है. ये 1.4 में, वो सारा 9 to 12 में था, ये पेपर 1 ही है, लेकिन ये 1.4 में दे रखा है, 1.5 में और 1.6 में. इसमें प्राइमेट्स के बारे में काफ़ी कुछ दे रखा है कि प्राइमेट्स में कैसे इवोल्यूशन हुआ है, टेक्सोनोमी कैसे होती है, एडेप्टेशंस कैसे होते हैं प्राइमेट्स में,
और ये सिंपली जो डार्विनियन थ्योरीज हैं उन और लामार्कियन थ्योरी वगैरह ये सब यहाँ समझाया हुआ है। तो ये सिलेबस में दे रखा है, ये आपको अच्छे से समझना है। और ये सारा वो है कि मतलब अफ्रीका में जब पहले ह्यूमन था या पहले जो एप्स थे उनसे ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ है, तो ये सारा स्टेजेस बताई हुई हैं। और अपने को हर इन स्टेज का थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या था, इस जावानिकस में क्या था, होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस का क्या फीचर्स थे, निएंडरथाल के क्या थे, रोडेशियन के क्या थे। तो ऐसा थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। और एक फिर सिंपल लास्ट में दे रखा है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, लाइक द सेल, डीएनए स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, म्यूटेशन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या, सेल डिवीजन क्या, ये सारी चीजें भी पार्ट ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है। तो नाउ अब सोर्सेज की बात करते हैं यदि, तो सोर्सेज में एक तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बाई पी नाथ ये बुक आती है, ये आपको करनी ही पड़ेगी, ये मैंडेटरी है एक तरह से, क्योंकि इसमें सारी कुछ चीज़ें दे रखी है। और उसके अलावा फिर प्रिंटेड नोट्स ले सकते हैं आप किसी भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स के। तो प्रिंटेड नोट्स में क्या होता है ना कि वो सिलेबस वाइज मैनर में दे रखे होते हैं, सबसे अच्छी बात यह है। तो 9.1 में जैसे कुछ ह्यूमन जेनेटिक्स का दे रखा है, तो ह्यूमन जेनेटिक्स की वो सारी चीज़ें 9.1 में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके दे देता है। 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, तो बहुत ही इजीली हो जाता है। अपने नोट्स भी यहाँ से बहुत ही अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। तो उसके तो इसलिए प्रिंटेड नोट्स आप रेफर कर सकते हैं। देन एंथ्रोपोलॉजी बाय एम्बर एंड एम्बर, ये जो बुक जो सेम में बता रहा था सोशल में भी, तो यहाँ से कुछ कुछ ह्यूमन इवोल्यूशन का पार्ट पढ़ सकते हैं और कुछ सेलेक्टिव एग्जाम्पल्स यहाँ से उठा सकते हैं। और इसमें प्राइमेट्स वाला भी बहुत अच्छा दे रखा है, प्राइमेट्स वाला पोर्शन इसमें, वो भी आप यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें एक बॉक्सेज भी दे रखे हैं इस बुक में, एम्बर एंड एम्बर में। जैसे ये बुक का एक पेज है, तो इसमें यहाँ पर बॉक्स दे रखा होगा कुछ, तो इस बॉक्स में कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है यूनिक, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं इसमें, फ्रॉम दी एम्बर एंड एम्बर। और सिंपली और फिर उसके बाद केस स्टडी की बुकलेट भी मिलती है मार्केट से, तो आप केस स्टडी की बुकलेट ले लीजिए और उनको आप वो ये मैं बताऊंगा कैसे यूज करना। यूट्यूब के वीडियोस की हेल्प लीजिए आप, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में बहुत सारा मैटर बायोलॉजी का है। तो यदि अपन बायोलॉजी से नहीं बिलोंग करते हैं तो ये फिजिकल तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है शुरू में। तो यूट्यूब के वीडियोस की हेल्प लीजिए, खासकर जो एनिमेटेड वीडियोज होते हैं। और एक एनसीईआरटी की बुक आती है 11th क्लास की, वो बायोलॉजी की, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको थोड़ा इश्यू लगता हो। तो ये कुछ सोर्सेज हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के। तो हाउ टू अप्रोच द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आप ऐसे अप्रोच करेंगे कि 11th की बायोलॉजी की बुक है उसको सबसे पहले पढ़ेंगे। यदि आपको डाउट है सिंपली जो सेल और सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस, इन सब चीज़ों में, तो आप ये करेंगे और इसके ये चैप्टर्स हैं वो आप पढ़ेंगे 7th, 8th, 9th, 10th और 20। तो इन सब चीज़ों इन सब से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आगे पी नाथ पढ़ने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब आप पी नाथ को पढ़ेंगे इन द सीक्वेंस ऑफ सिलेबस, तो सिलेबस के जो टॉपिक दे रखे हैं उस सीक्वेंस में ही आप इसे पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है ना थोड़ा सा रैंडम मैनर में दी हुई है पी नाथ, तो इसमें थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है कई बार। तो आप सिंपली आपको सीक्वेंस ऑफ द सिलेबस में पढ़नी है, जैसे सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद फिर उसके बाद या उसके साथ साथ जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है यूट्यूब वीडियोज़ को आप लोगों को रेफर करना है, और जहाँ भी आपको ज़रूरत लगती है। और यूट्यूब वीडियोज़ में पर्टिकुलरली एनिमेटेड वीडियोज़ आप रेफ़र कीजिए, क्योंकि एनिमेशन में क्या होता है वो चीज़ें दिखा देते हैं, जैसे क्रोमोसोम्स आके मिल रहे हैं या उसमें ब्रेकअप हो रहा है, टूट रहे हैं, वो कैसे सेपरेट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। और अब ये सब करने के बाद आप नोट्स बना सकते हैं। तो नोट्स बनाने के लिए पी नाथ आपका बेसिक सोर्स रहेगा, और इसको सिलेबस वाइज ही बनाइए नोट्स, सिलेबस वाइज या टॉपिक वाइज जो भी कहें, क्योंकि इससे बहुत ही आसानी होगी आपको रिवाइज करने में, और रिवाइज करने में भी, और उसमें मतलब रिफ्लेक्ट करने में भी। जब आप आंसर लिखेंगे तो इजीली आप लिख पाएंगे कि क्या क्या उसमें आएगा। फिर रेलेवेंट टॉपिक्स ऑफ द एम्बर एंड एम्बर, और एम्बर में से भी आप कुछ कुछ कंटेंट ले सकते हैं। जैसे मैंने ये बताया था कि ह्यूमन इवोल्यूशन आपको यहाँ से पढ़ना है, प्राइमेट्स यहाँ से पढ़ना है, और सेलेक्टिव एग्जाम्पल्स एंड कंसेप्ट्स भी एम्बर एंड एम्बर से पढ़ने हैं। तो अप्रोचिंग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो फिजिकल, हाँ, तो ये चल रहा है, ये अभी कंटिन्यूड है नेक्स्ट में। तो इसमें क्या करेंगे, गो थ्रू दी नोट्स ऑफ दी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी।
फिजिकल एंथ्रो फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट। अब आपने खुद के नोट्स बना लिए, अब नोट्स ऑफ द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी लेंगे किसी और इंस्टीट्यूट के। तो इसमें जो नई चीज है, या फिर इसमें एक काम कर सकते हैं, टॉपर्स के नोट्स भी ले सकते हैं। टॉपर्स हैं जैसे अनुदीप दूरी शेट्टी सर ने कुछ बनाए हुए हैं, सचिन गुप्ता सर ने कुछ बनाए सॉरी सचिन गुप्ता सर ने भी कुछ बनाए हुए हैं। तो उन नोट्स को आप रेफर कर सकते हैं, और उनको उसमें जो कुछ वैल्यू एडिशन आपको मिलता है वो वैल्यू एडिशन आप डायरेक्टली उसमें डाल, अपने जो नोट्स हैं मेन नोट्स उसमें अपडेट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद वही सेम की न्यू रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन मेन नोट्स, है ना। और केस स्टडीज की जो बुकलेट अवेलेबल है मार्केट में वहां से लेंगे, और आप मेन नोट्स में उसको अपडेट करते जाएंगे, जिससे कि जो आपके जो मेन नोट्स है वो बने रहें और उसी में नई नई इन्फॉर्मेशन आती रहे। अदरवाइज क्या होता है, आपने इनको अलग से पढ़ा तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे उससे, और जब आंसर लिखेंगे तो आपको ये चीज याद ही नहीं आएगी कि ये चीज भी मेंशन थी, है ना। तो इसलिए वो जरूरी है कि आप उसी कंटेंट में उसको डालें। सिमिलरली एम्बर एंड एम्बर से भी डालेंगे, और इसके अलावा कोई जो मार्केट में बहुत ज़्यादा जो मटेरियल चलते हैं वो भी आपको करने पड़ेंगे टू फिल इन दी गैप्स। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये सारी चीज़ करने के बाद भी हमारे सिलेबस के हर कंपोनेंट कवर नहीं होते हैं। तो उस केस में हमें जो भी मार्केट में मटेरियल ज़्यादा चल रहा है वो करना पड़ता है, क्योंकि वो और लोग भी कर रहे हैं, हमारे कंपटीटर्स कर रहे हैं। तो जो चीज़ हमारे कंपटीटर कर रहे हैं वो एटलीस्ट हमें तो करनी ही पड़ेगी, हमें उससे एडवांस लेवल पे चलना पड़ेगा। तो आप मटेरियल ऐसा ढूंढिए और उसको आप करिए, और उसमें से जो कुछ नया मिलता है या जो सिलेबस के पॉइंट छूट गए थे वो आप वहाँ से लेकर के अपना जो गैप है वो उसको फिल कर लीजिए, और अपने नोट्स इतने स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि उसका कोई पैरेलल होगा ही नहीं। सिंपल फिर अगेन फ्रॉम न्यूज़पेपर से भी आप नोट्स ले सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर से मैं बताऊं तो जैसे लास्ट ईयर कोविड के टाइम पर एक आया था कि ट्राइबल्स जो हैं राजस्थान के वो क्या करते हैं, अपने जो किचन गार्डन बनाते हैं और उसमें ऐसी क्रॉप्स या ऐसी वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं जो कि आयरन रिच हैं, तो उनमें आयरन डेफिशिएंसी नहीं मिलती है। तो जो न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी है तो उसमें ये चीज अपन डाल सकते हैं कि न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी या न्यूट्रिशन के लिए कल्चरल अडेप्टेशन कैसे किया है ह्यूमन ने, तो उसमें वो एग्जाम्पल फिट इन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल्स वहां से लेके और उसको एट द अप्रोप्रिएट प्लेस इन योर नोट्स यू शुड प्लेस। ओके नाउ ये अभी ये पेपर 1 हो गया है, उसमें बस एक आर्कियोलॉजी बचा है, वो मैं आगे लूंगा। और ये अभी इंडियन आर्कियोलॉजी देखते हैं, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में क्या क्या आता है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया, स्ट्रक्चर नेचर ऑफ ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम लाइक वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, कर्मा, ऋणा एंड रिबर्थ, कास्ट सिस्टम इन इंडिया। इसके बहुत सारे मतलब बहुत सारी स्टडीज की हैं बहुत प्रोमिनेंट स्कॉलर्स ने, तो वो भी देखना है। सीक्रेट कॉम्प्लेक्स, नेचर इज मेन स्पिरिट, इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, इमरजेंस एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया, ये सारा देखेंगे। इंडियन विलेज की स्टडीज है वो देखेंगे इसमें। लिंग्विस्टिक रिलीजियस माइनॉरिटीज पर क्या इश्यूज हैं उनके, ये सब देखेंगे। और एक्सोजीनियस इंडिजिनियस प्रोसेसेस ऑफ सोशियो कल्चरल चेंज इन इंडियन सोसाइटी देखेंगे। इसमें संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें स्कॉलर्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा। जैसे डेमोग्राफिक प्रोफाइल को छोड़ के ये जो जितने भी हैं इनमें स्कॉलर्स का बहुत रोल है। केवल स्कॉलर्स के जो व्यू हैं वो हमें प्रेजेंट करने हैं इन द आंसर्स, बिकॉज हम अपने व्यू से प्रेजेंट करेंगे तो उसके मार्क्स बहुत ही कम मिलेंगे। यदि हम स्कॉलर्स का व्यू देंगे तो वो एक ऑथेंटिक व्यू होता है और वो एक मतलब कि डीपली स्टडीड व्यू होता है, ठीक है। तो इसलिए उनका जो व्यू होता है वो ज़्यादा मार्क्स गेन करता है। तो आपने देखा होगा कई टॉपर्स जो ये चीज़ मेंशन करते हैं स्कॉलर्स के, तो उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए आपको भी मैं अटेंशन सीख करूंगा आपका भी कि आप स्कॉलर्स पर ध्यान दें, है ना। जो स्कॉलर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे इमरजेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इंडिया है, तो इसमें आपको ये स्कॉलर एडमिनिस्ट्रेटर्स या स्कॉलर्स मिल जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से ही आपको कोट करने हैं उसमें। देन सोर्सेज ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, इसमें इंडियन एंथ्रोपोलॉजी बुक आती है भाई नदीम हसनैन। तो नदीम हसनैन की बुक है, ये आप अच्छे से रीड करिए क्योंकि इसमें लगभग सारे टॉपिक्स अच्छे से समझाए हुए हैं। फिर देन देयर इज मटेरियल ऑफ इग्नू। इग्नू इज सोशियोलॉजी मटेरियल, नॉट एंथ्रोपोलॉजी मटेरियल। एंथ्रोपोलॉजी मटेरियल you have to do in paper 1. Now I am talking about the sociology material, MA and BA sociology material, and that too only for selective chapters, not for all chapters, है ना। So wherever there is overlap between the BA sociology material of IGNOU and our Indian anthropology syllabus, you have to refer to IGNOU also.
because they have given many scholars view in that material, and you can update your notes in that context, है ना. एंड देन अगेन हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट बाय गया पांडे. इसमें क्या होता है गया पांडे में, इसमें कुछ तो बिगिनिंग में तो कुछ फॉरेन ऑथर्स, फॉरेन स्कॉलर्स का दिया हुआ है, फॉरेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का दिया हुआ है, लेकिन जो लेटर पार्ट है उसका उसमें इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का दिया हुआ है. जैसे कि एस.सी. दुबे हो गए या एम.एन. श्रीनिवास हो गए, एल.पी. विद्यार्थी हो गए, तो उन सब का वर्क और उन सब के व्यूज दिए हुए हैं इस बुक में. तो वो आपको पता होने चाहिए फॉर स्कोरिंग बेटर मार्क्स इन इंडियन एंथ्रोपोलॉजी. और फिर उसके अलावा कुछ बचता है आपको, तो आप प्रिंटेड मटेरियल ले लीजिए किसी भी अदर इंस्टीट्यूट का, और जो आपके गैप हैं उनको फिल इन कर लीजिए, ठीक है. और केस स्टडीज की बुकलेट ले लीजिए मार्केट से, जो कि इजीली अवेलेबल हैं, 2-3 इंस्टीट्यूट की हैं अच्छी, तो वो आप उनको लीजिए और उनको पढ़िए, और उनको फिर मैं बताता हूँ उनका करना क्या है. तो तो ये है मतलब हाउ टू अप्रोच द इंडियन एंथ्रोपोलॉजी. तो इसमें नदीम हसनैन की बुक को पढ़िए आप अच्छे से, सिलेबस वाइज मैनर में, जो सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही. फिर इग्नू मटेरियल देखिए सेलेक्टिवली, जहाँ पर ओवरलैप हो ओनली, सारा नहीं पढ़ना क्योंकि ये बहुत बड़ा वो है कंटेंट है, आपको ओवरलैप वाला ही ढूंढना है. फिर आप नोट्स बनाइए, और नोट्स में इन दोनों सोर्सेज से बनाइए, और एंड अगेन सिलेबस वाइज मैनर में ही बनाना है, ठीक है, सिलेबस वाइज सीक्वेंस में, जैसे कि 1.1, 1.3 उस तरह से, क्योंकि ये रिवाइज करने में बहुत ही आसान होता है. तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सिलेबस वाइज नोट्स ही बनाने हैं आपको एंथ्रोपोलॉजी में. और फिर जो केस स्टडीज की बुकलेट आपने मार्केट से लिए हैं, उसमें से केस स्टडीज उठाइए और उन केस स्टडीज को अपने नोट्स में डालिए जहां पर आपका अप्रोप्राइट प्लेस है. जैसे कि विलेज स्टडी की बात करते हैं, तो विलेज की केस स्टडी है वो विलेज हेड के अंडर डालिए, संस्कृताइजेशन की है संस्कृताइजेशन के अंडर, वेस्टर्नाइजेशन के अंडर. तो इस तरह से आप नोट्स को एनरिच करते रहेंगे. तो ये हो जाएगा इंडियन एंथ्रोपोलॉजी को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे. इसमें अगेन फिर नदीम हसनैन बुक, गया पांडे बुक पढ़ेंगे एंड में, और उसमें से कुछ जो नई इन्फॉर्मेशन आएगी वो आप रेलेवेंट जगह पर प्लेस करते रहेंगे. और सिमिलरली फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, ये न्यूज़पेपर सब में चलेगा. आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपका दिमाग हमेशा आपको खुला रखना है कि ये एंथ्रो का पार्ट है या जीएस का पार्ट है, एथिक्स का पार्ट है, कहाँ का पार्ट है, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, ठीक है. तो आपका जो न्यूज़पेपर है वो इसमें भी बहुत काम आता है. अब आते हैं एक जो फोर्थ मेजर पोर्शन है इसका, वो है ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी. तो ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम, एक तो ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया, मतलब कहाँ कहाँ पर ट्राइबल्स हैं, कितने हैं, कौन कौन सी उसकी रेसेज हैं या बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी है, कितना क्या स्टेटस है उनका, ये सब चीज़ इसमें पढ़ते हैं. फिर प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़, तो ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही है हमारे कंट्री में. तो उनके जो जैसे लैंड एलियनेशन, पावर्टी, इंडेटेडनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, ये सारे इश्यूज हैं, इन सबको हमें डीपली स्टडी करना पड़ता है. और इसमें स्कॉलर्स का व्यू भी लेना पड़ता है यदि किसी ने काम किया है, तो स्कॉलर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स का व्यू, या फिर कोई रिपोर्ट्स का व्यू, जैसे कि देवार कमेटी की रिपोर्ट थी पहले, और अभी रिसेंटली काका कमेटी की रिपोर्ट आई थी. तो ये सब रिपोर्ट्स का आपको डेटा पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा डेटा पता होना चाहिए, और उनके क्या रिकमेंडेशन थे इन रिगार्ड टू दीज प्रॉब्लम्स. और फिर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट एक कॉमन इश्यू है इंडिया में. जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है, एरे फॉरेस्ट है, और उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे हैं. तो ऐसे इवेंट्स हुए हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए. और फॉरेस्ट पॉलिसी है, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, और उसका ट्राइबल के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए. और फिर SC ST की भी बात की गई है, SC ST एंड OBCs की, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर देम, SC STs, OBCs, सोशल चेंज एंड कंटेम्प्रेरी ट्राइबल सोसाइटीज, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस. तो ये सारी चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए. कंसेप्ट ऑफ एथनिसिटी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, अनरेस्ट अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज, रीजनलिज्म, ये सब करेंगे आप. ये सब इजी टॉपिक्स हैं, आप इजीली कर पाएंगे किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक से. तो इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी ऑन एंड अदर रिलीजन्स ऑन ट्राइबल सोसाइटीज. तो ये कम्प्लीटली ट्राइबल के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं. ट्राइब एंड नेशन स्टेट, हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, मतलब ब्रिटिश के टाइम क्या था, ब्रिटिश के टाइम में बहुत इवॉल्व हुआ, और अभी रिसेंटली क्या आया है,
5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल वगैरह, ये सारी चीज़ इसमें हम करते हैं। फिर उसके बाद कंसेप्ट ऑफ पीवीटीजीज। पीवीटीजीज जो अभी ये पहले पीटीजीज था, अब पीवीटीजीज हो गया, जो कि अभी 75 हैं और उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और रोल ऑफ एनजीओज इन ट्राइबल डेवलपमेंट, ये भी देखना है, और रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीटली ट्राइबल्स के रिलेटेड है, तो ये हम करेंगे प्रिपेयर। इसके लिए सोर्सेज क्या क्या है? ट्राइबल इंडिया बाई नदीम हसनैन है, ट्राइबल इंडिया बाई नदीम हसनैन बुक, ये बुक इजीली अवेलेबल है मार्केट में। देन काका कमेटी रिपोर्ट, जो प्रॉब्लम्स वाली मैं बात कर रहा था वो ये काका कमेटी रिपोर्ट है, आपको इजीली इंटरनेट पर मिल जाती है या मार्केट में भी मिल जाती है। ट्राइबल कल्चर बाई एलपी विद्यार्थी, ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख सकते हैं यदि टाइम है तो, अदरवाइज ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योजना मैगजीन है एक 2014 की, उसमें मार्जिनलाइज्ड सोसाइटीज पर बात की गई है। तो मार्जिनलाइज सोसाइटीज एक तरह से ट्राइबल सोसाइटीज ही हैं, और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उनका, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। और फिर इसमें भी आपको केस स्टडीज ऐड करनी है। केस स्टडीज कहाँ से ऐड करेंगे? इस रिपोर्ट से, कागा कमेटी रिपोर्ट से, और जो केस स्टडीज की बुकलेट मार्केट में मिलती है उससे, या इंटरनेट पर कहीं भी मिल जाए, आप उसको डाउनलोड कर लो। प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स की हैं तो वो डाउनलोड करके आप उसको पढ़ लीजिए और उनको अप्रोप्राइट प्लेस पर लगा दीजिए, जैसे मैं बताऊंगा कैसे लगाना है आपको। तो इसका अप्रोचिंग यही है कि आप नदीम हसनैन बुक को अपना बेसिक मटेरियल बनाइए इसमें, क्योंकि एक प्रॉब्लम नदीम हसनैन बुक के साथ ये है कि एक तो ये पैराग्राफ फॉर्म है, तो पैराग्राफ फॉर्म का तो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था कि मार्क नंबर्स इन द बुक, मतलब पैराग्राफ है तो उसमें 1 2 3 4 मार्क कीजिए, जहाँ जहाँ पर एलिमेंट दे रखा है 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या क्या लिख रखा है उसमें। सेकंड ये है कि ये बहुत ही पुरानी बुक है, तो इसमें जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो नहीं है, तो वो आपको लेना पड़ेगा काका कमेटी रिपोर्ट से या कोई अदर सोर्सेज से। तो ये एक इसमें इश्यू रहता है, बाकी ठीक है ये। देन ट्राइबल कल्चर बाय एलपी विद्यार्थी आपको करनी है, और फिर आप नोट्स बना सकते हैं। इसमें बस आप अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, और नदीम हसनैन की बुक है उसको आप अच्छे से पढ़िए, और उसके बेसिस पर आप नोट्स बनाइए। और उसके बाद जब आप ट्राइबल कल्चर बाय एंथ्रोपोलॉजी में जो आपने ऑलरेडी मार्क कर रखा है उसका जो इन्फो है वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, ठीक है। नया जो अलग अलग अंडर द सेम टॉपिक, मतलब टॉपिक के नीचे ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अलग ही उसका एक 10 पेज का अलग ही डॉक्यूमेंट बना दिया कि नोट्स फ्रॉम एलपी विद्यार्थी बुक, वो काम नहीं करता। वो आपको सेम ही उन्हीं नोट्स में ही प्लेस करना पड़ेगा। एंड देन एलपी, जैसे मैंने बताया, बेस मटेरियल नदीम हसनैन रहेगा और एड ऑन फ्रॉम दी एलपी विद्यार्थी आपको करना पड़ेगा। देन गो थ्रू द काका कमेटी रिपोर्ट। काका कमेटी रिपोर्ट में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट दी हुई हैं। एक तो कि केस स्टडीज उसमें दी हुई है ना, केस स्टडीज में कि कौन सा ट्राइबल कौन सी इश्यूज फेस कर रहा है वगैरह। फिर उसके अलावा आप उसमें पाएंगे कि क्या क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं ट्राइबल्स। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो फाइंड सर्टेन रिकमेंडेशंस मेड बाय द काका कमेटी रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ द ट्राइबल सोसाइटीज, है ना। तो ये चीज आपको ये दी हुई है। तो आप जब भी काका कमेटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तब आप इन चीजों पे फोकस करना है, एक तो केस स्टडीज, इश्यूज एंड रिकमेंडेशंस। तो इश्यूज में आपका ये भी आ जाते हैं, ये सारे आएंगे जो सिलेबस में दे रखे थे, इलिटरेसी, लैंड एलियनेशन, हेल्थ वाले इश्यूज, है ना, और एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, और क्या है, अंडर न्यूट्रिशन, ये सारे इश्यूज उसमें दे रहे हैं। और इन सब के फैक्ट्स भी उसमें दे रखे हैं। सबसे अच्छी चीज है कि काका कमेटी में फैक्ट्स भी दे रखे हैं, तो उन फैक्ट्स को आपको हाईलाइट करके रखना है, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे, जो अपने नोट्स में ऐड करना है मेन नोट्स में, तो ये फैक्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि यही लेटेस्ट रिपोर्ट है। उससे पहले नदीम हसनैन वाली बहुत पुरानी बुक है, तो इसलिए उसको अपडेट करने के लिए आपको काका कमेटी रिपोर्ट की हेल्प लगेगी। और जैसे बुकलेट, केस स्टडीज की बुकलेट की बात की थी और योजना की बात की थी मैंने, तो उसमें भी जो कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको भी आप ऐड कर लें अपने मेन नोट्स में, वहीं जहां पर कि आपका वो टॉपिक दिया हुआ है। देन न्यूज़पेपर से भी आपको ऐड करना है। तो ये सारा ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी का हो जाएगा, आपको कैसे करना है। तो अब बात करते हैं हम आर्कियोलॉजी की। तो आर्कियोलॉजी जो है वो पेपर 1 में भी है। ये जो टॉपिक्स हैं, दीज टॉपिक्स आर इन पेपर 1 ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड दीज आर इन पेपर 2, एंड दीज ऑल टॉपिक्स बिलोंग टू
archaeology. So these are largely with respect to world archaeology, not from Indian archaeology, and these are largely with respect to Indian archaeology. ठीक है, तो ये आर्कियोलॉजी, ये वर्ल्ड आर्कियोलॉजी, ये तो कॉमन है, ये वाला जैसे प्रिंसिपल ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, क्रोनोलॉजी, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स, और ये वाला जो है ये लार्जली वर्ल्ड आर्कियोलॉजी पर रिलेटेड है। ठीक है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक, और ये इंडिया का रिलेटेड है कि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, मतलब प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, फिर प्री हड़प्पन, पोस्ट हड़प्पन, कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल कल्चर्स टू इंडियन सिविलाइजेशन, इसमें भी अगेन ट्राइबल कल्चर्स का आता है। फिर पेलियो एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब कि पुराने इंडिया में जो एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, तो उसमें शिवालिक्स और नर्मदा बेसिन में जो मिले थे, नर्मदा मैन और शिवापिथिकस, रामापिथिकस, इनके बारे में स्टडी करनी है। थोड़ा बहुत फिर एथनो आर्कियोलॉजी इन इंडिया के बारे में भी पूछा गया है। तो ये सारा आर्कियोलॉजी का सिलेबस है हमारा जो कवर करता है। तो इसमें अब ठीक है, इसमें हम कैसे प्रिपेयर करेंगे इसको, या सोर्सेज क्या हैं इसके, हम देखते हैं। तो इसमें सोर्सेज हैं, एक तो जनरल एंथ्रोपोलॉजी बाय नदीम हसनैन, तो ये बुक आती है भाई नदीम हसनैन, जनरल एंथ्रोपोलॉजी, ओके। और जनरल एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी कुछ आपका वर्ल्ड आर्कियोलॉजी का इसमें कवर हो जाता है। फिर आता है प्रिंटेड नोट्स ऑफ अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, में प्रिंटेड नोट्स भी आपको लेने पड़ेंगे, कई बार कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं हो पाती हैं, तो वो उन नोट्स में इजीली मिल जाती हैं कि इस हेड के अंदर लिखना क्या, जैसे कि 1 पॉइंट, या फिर नियोलिथिक या मीसोलिथिक कल्चर की बात करें वर्ल्ड में, तो उसमें लिख रखा होगा 4-5 कल्चर्स के ये कल्चर हैं, और उन कल्चर्स को अपन या तो यहाँ से ढूंढ लेंगे या उसमें उसी बुक में ढूंढ लेंगे, जिससे कि अपना एटलीस्ट सिलेबस पूरा हो जाए अच्छे से। जैसे अभी रिसेंटली आया था नेटुफियन कल्चर लास्ट ईयर, तो नेटुफियन कल्चर जो था वो एक सारी बुक्स में मेंशन नहीं था, वो एक नोट्स में मेंशन था, तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते थे। और इसमें फिर आपका जो जीएस के लिए जो एंशिएंट हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, क्योंकि वो उसका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत काम आएगा कि पेलियोलिथिक के बाद क्या आया, क्या कल्चर रहा होगा, नियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक, और पेलियोलिथिक के कितने पार्ट हैं, लोअर पेलियोलिथिक, अपर, और उसका मिडल भी है, मीजोलिथिक, फिर नियोलिथिक, फिर ये चाल्कोलिथिक, आयरन एज, तो ये सारा वहाँ से भी आपको अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। तो इसमें डी.के. भट्टाचार्य जी की एक बुक आती है आर्कियोलॉजी के रिगार्डिंग, थोड़ी मोटी बुक है, तो उसमें से इसलिए आपको सेलेक्टिव चैप्टर्स ही पढ़ने हैं जहाँ कुछ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। और डी.के. भट्टाचार्य जी के वीडियोज भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, तो वो वीडियोज भी आपको रेफर करने हैं जहाँ भी आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इश्यू आए, तो ये चीज़ आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सोर्सेज हैं इसके आर्कियोलॉजी के। फिर देन इसको अप्रोच कैसे करना है इंडियन आर्कियोलॉजी को, तो उसमें ये करेंगे कि सबसे पहले ये नदीम हसनैन की जनरल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा ना, इसमें आपके वर्ल्ड आर्कियोलॉजी का बहुत सारा कवर हो जाएगा। इसमें फिर इसको आप डी.के. भट्टाचार्य के साथ भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डी.के. भट्टाचार्य बुक, क्योंकि जो वर्ल्ड आर्कियोलॉजी है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है अंडरस्टैंडिंग करने में, क्योंकि हमने कभी पढ़ी नहीं है वो, हमारे लिए फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो हम डी.के. भट्टाचार्य जी के वीडियो देख लेंगे, और या फिर उसकी बुक भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें अपने को पढ़ना क्या क्या है, मतलब फोकस कहाँ करना है, एक तो कि टाइम पीरियड पर, कि मतलब जो कल्चर है, पेलियोलिथिक कल्चर है, उसमें टाइम पीरियड क्या था, लोअर पेलियोलिथिक कल्चर जैसे है तो उसके भी 2-3 उन्होंने सब पार्ट दे रखे हैं, उन सब पार्ट का टाइम पीरियड क्या था, देन टूल टेक्नोलॉजी क्या थी, और टूल्स क्या थे, टूल्स के अलॉन्ग विथ डायग्राम्स, आपको डायग्राम्स भी सीखने पड़ेंगे कि क्रूड टूल थे उनका वो कैसे थे, है ना। और उसके बाद में कल्चरल एस्पेक्ट्स, मीन्स रिलीजियन वो फॉलो करते थे या नहीं, क्लोथ पहनते थे या नहीं, उसमें वो क्या कहते हैं, मतलब मेल फीमेल कपल बनाते थे या नहीं बनाते थे, तो ये सारी चीज़ आपको इन सब चीज़ों पर फोकस करना है। सिमिलरली फिर एनी कोचिंग मटेरियल आप पढ़ सकते हैं इंडियन आर्कियोलॉजी के लिए, या अपना जीएस की जो अंडरस्टैंडिंग है उससे भी आप इसमें काम चला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और सिमिलरली इसमें टाइम पीरियड, टूल टेक्नोलॉजी, और ये वापस से फोकस करना ही है, टूल, डायग्राम एंड कल्चर। और इसमें एक और चीज़ है साइट्स, वो भी आपको पता होनी चाहिए, कौन से कल्चर की कौन सी साइट्स कहाँ हैं, सिमिलरली इंडिया में भी और वर्ल्ड में। और जहाँ कहीं भी आर्कियोलॉजी का क्वेश्चन आए वहाँ आप मैप बना दीजिए, इंडिया का या वर्ल्ड का, जहाँ कहीं का भी हो, और मैप बना दीजिए, और उसमें दिखाइए कि
कौन सा कल्चर कहाँ था। जैसे यहाँ था, डीडवाना में था, ये आहड़ और बनास कल्चर यहाँ था, भीमबेटका यहाँ था, ये अपना हड़प्पा यहाँ था। तो ये सारी चीज़ जहाँ कहीं भी पूछी जाए आप उसको तुरंत आप मैप ड्रॉ कर लीजिए और उससे आपका अच्छा एक प्रेजेंटेशन दिखेगा, ठीक है। और इसको एक कंपेरेटिव मैनर में भी पढ़िए, मतलब कि जब इंडियन आर्कियोलॉजी में कुछ हो रहा था तब वर्ल्ड में क्या हो रहा था, या वर्ल्ड में जब पेलियोलिथिक चल रहा था तो इंडिया में क्या चल रहा था। तो उस तरह से आप कंपेरेटिव भी करते रहिए, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। ऐसा कोई क्वेश्चन फ्यूचर में आता है या नहीं भी आता है तो आप जब ये क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चंस भी आंसर करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली उसमें रिफ्लेक्ट होगा। और फिर आप नोट्स बना लीजिए इनके, कि हर साइट का नोट्स बना लीजिए। जैसे कि मैंने ये पॉइंटर्स बताए, टाइम पीरियड, टूल टेक्नोलॉजी और टूल डायग्राम्स, कल्चरल एस्पेक्ट, साइट्स, मैप्स, ये सब आप उसमें मेंशन कर लीजिए। जैसे नोट्स बनाने की मैंने ये बात की है कि कल्चर वाइज आप क्या क्या नोट्स बनाएंगे इसमें, पीरियड, क्लाइमेट, टूल टेक्नोलॉजी, टूल्स, ह्यूमन स्पीसी भी आपको पता होनी चाहिए उस टाइम कौन सी ह्यूमन स्पीसी थी, ऑस्ट्रेलोपिथिकस था या होमो इरेक्टस था, निएंडरथाल था, नर्मदा मैन था, कौन था, ठीक है। और कल्चरल एस्पेक्ट आपको बता दिया कि रिलीजियन, क्लोथिंग, मेल फीमेल कपलिंग, ये सब होता था या नहीं होता था उस टाइम पे। तो और टूल टेक्नोलॉजी के डायग्राम पर भी आपको फोकस करना है और टूल्स के डायग्राम पर भी फोकस करना है और साइट्स मैप में दिखानी है, जैसे मैंने बताया। जैसे टूल डायग्राम होगा तो जैसे ये लोग ऐसे कुछ टूल्स थे वो काम में लेते थे पेलियोलिथिक में, ये क्रूड टूल बोलते हैं इनको। तो इनकी जो कटिंग एज थी ये थी। तो ऐसे आपको एक रफ डायग्राम बनाना आना चाहिए। सिमिलरली इसका भी आप टूल टेक्नोलॉजी का डायग्राम भी बनाना आना चाहिए। ये आप डॉक्टर विवेक भस्मे की बुक से देख सकते हैं और वो बुक में बहुत ही अच्छे डायग्राम दिए हुए हैं, तो आप वहीं से आप सीख लीजिए, वो सफिशिएंट रहेगा। और फिर न्यूज़पेपर से भी आप इसमें फोकस रखिए कि जैसे कुछ नियोलिथिक का नया कुछ कल्चर मिला है, नया कोई फॉसिल मिला है, तो और या फिर नया कोई ह्यूमन स्पीसी का कोई एविडेंस मिला है कहीं नई जगह पर, तो ये सब चीज़ें आप ट्रैक रखिए। इसके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर अच्छा है। द हिंदू में लास्ट के पेज में एक लाइफ करके जो आता है सेक्शन, उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, तो आप उस पर भी नज़र रखिए कि क्या कुछ नया मटेरियल मिला है क्या। और इसके अलावा जो ये सारी चीज़ करने के अलावा जो बहुत सारे चैनल्स हैं, टेलीग्राम पर है, यूट्यूब पर है, उनकी भी हेल्प लीजिए। बहुत सारे इंडिविजुअल टीचर्स हैं, वो भी अपलोड करते रहते हैं कुछ की करंट अफेयर्स के नोट्स या और कुछ रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी, तो आप उनको भी एक ट्रैक रखिए। मतलब हर आपको नहीं पढ़ना हर आर्टिकल उसमें से, लेकिन कुछ बड़ा आर्टिकल आता है तो उसको एक बार देख लीजिए, उसका 2-3 लाइन का नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आपको बाद में जब एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। और आपका ये जो नोट्स बनेंगे इतने यूनिक होंगे, इतने एनरिच्ड होंगे कि आपको मतलब जो एग्जामिनर है वो मार्क्स काट ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप इजीली यू कैन गेट मोर देन 300+, है ना। तो मतलब जो मॉडरेशन होता है यूपीएससी के द्वारा वो एक अलग चीज़ है, उसका नहीं बता सकते कि वो कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन इन एन एवरेज सिनेरियो यू विल सर्टेनली गेट 300+ मार्क्स, आई कैन गारंटी यू। यदि आप ये सब करते हैं, इसके बाद आप अच्छे से आंसर राइटिंग में, स्ट्रक्चरिंग पर ध्यान देते हैं। जैसे आंसर राइटिंग का मैं ब्रीफ में बताऊं तो एंथ्रोपोलॉजी में तो एक तो आपको वही सेम इंट्रो बॉडी कंक्लूजन रहता है इसमें भी। तो इंट्रो में आपको डेफिनेशंस देनी है, स्कॉलर की डेफिनेशंस देनी है, स्कॉलर्स की डेफिनेशंस देनी है। फिर आपको जो कोई भी कंसेप्ट दिया तो उसका एक स्ट्रक्चर बना लेना। जैसे आर्कियोलॉजी के क्वेश्चन है तो उसमें हम पीरियड लिखेंगे, टूल टेक्नोलॉजी लिखेंगे, उस टाइम पे क्लाइमेट क्या होता था वो लिखेंगे, टूल्स क्या होते थे वो लिखेंगे, ह्यूमन स्पीसी क्या थी, साइट्स क्या थी, कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या थे। ये सब लिखने के बाद हम एंड में कंक्लूड करेंगे कि ये इस कंक्लूजन में कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस कि आफ्टर पेलियोलिथिक मैनी डेवलपमेंट्स हैड कम देयर एंड बिकॉज ऑफ दैट द न्यू एरा ऑफ टूल मेकिंग बिगेन इन द मीसोलिथिक। तो ऐसा करके हम कुछ भी एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि पेलियोलिथिक सेट है बैकग्राउंड फॉर द मीजोलिथिक, फॉर द कमिंग ऑफ द मीजोलिथिक। तो ऐसे करके हम कंक्लूड करते हैं। और ये एक आंसर स्ट्रक्चर आपको हर
टॉपिक का बनाना पड़ेगा। हर टॉपिक का, जैसे कि अब आर्कियोलॉजी में बात करें तो वो जनरली कल्चर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ये चल जाता है। सेकंड, फिर जो सोशल कंसेप्ट हैं उसका भी एक बनाना होता है ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे कि सोशल कंसेप्ट है क्या, उसमें किस किस स्कॉलर ने काम किया है, उसके बाद स्कॉलर्स का व्यू क्या है उस कंसेप्ट के बारे में, क्या क्या थ्योरीज हैं, उस कंसेप्ट का क्या क्रिटिसिज्म है, क्या सिग्निफिकेंस है, एंड देन कंक्लूजन क्या है। तो इतने सारे जब हम पॉइंट डालते हैं उसमें, तो अपने पास कंटेंट भी कम नहीं पड़ता। जैसे 2-2, 3-3 पॉइंट भी लिखेंगे इनमें तो सफिशिएंट 2-2.5 पेज भर जाएंगे। तो उस केस में आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके पास सफिशिएंट कंटेंट रहेगा। तो इस तरह से आप एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ही इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड इन एंथ्रोपोलॉजी। और तो ये सारे आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मुझे लगता है 300 प्लस या 280 से अबोव ले आएंगे इसमें, और सिलेक्शन आप अपना अश्योर कर सकते हैं। तो लेट्स क्रैक इट, let's crack the UPSC exam together with anthropology as optional and make the anthropology as your strong point in the UPSC journey, because जो मेरा भी यही था, उसकी वजह से मैं आज इस ये रैंक हासिल कर पाया हूँ। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।